بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ آج کی کہانی ایک جن زادے کی سچی کہانی ہے۔ دریا پار ایک آبادی تھی جس میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جس میں وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا ایک جن ہے۔ ان بچوں میں فاطمہ نام کی ایک لڑکی بھی قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ وہ لڑکا تقریباً 2 سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا۔ 2 سال میں ایک دن بھی اس نے ناگا نہیں کیا۔ فاطمہ بھی برابر قرآن پاک پڑھنے آتی رہی۔ فاطمہ بہت ہی خوبصورت تھی اور دونوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا اور دونوں نے مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک روز فاطمہ اپنی بکریاں لے کر قریبی پہاڑ پر گئی۔ وہاں اسے وہی لڑکا ملا جو مسجد میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر فاطمہ گھبرا گئی۔ وہ نوجوان اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے فاطمہ اپنی بکریاں لے کر دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ وہاں بھی وہ آ جاتا ہے۔ فاطمہ نے پھر اپنی بکریاں گاؤں کی طرف موڑ لی۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی اور تیز بارش ہونے لگی۔ فاطمہ کی بکریاں بھی کہیں کھو گئیں۔ پھر اچانک سے وہ نوجوان فاطمہ کے پاس آ کر بولا، فاطمہ تم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگی، میری بکریاں کہیں کھو گئی ہیں۔ لڑکا بولا، میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں مل کر بکریاں تلاش کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک خوبصورت جگہ لے جاتا ہے جہاں اس کی بکریاں تھیں اور وہ بکریاں لے کر گھر آ جاتی ہیں۔ وہ اپنی بکریاں باندھ کر اپنے کمرے میں جاتی ہیں تو وہاں دیکھتی ہے کہ بڑے مزیدار اور اعلیٰ قسم کا کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، کمرے میں گرما گرم کھانا کس نے رکھا ہے؟ ماں نے کہا، میں نے تو نہیں رکھا۔ ماں باپ دونوں کمرے میں کھانا دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے ابا فاطمہ کی ماں سے کہتے ہیں کہ اب فاطمہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ فاطمہ کی شادی فاطمہ کے کزن سے طے ہو جاتی ہے۔ شادی کے 4 دن پہلے فاطمہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی بیمار ہو جاتی ہے۔ فاطمہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی ماں کو آواز دی، آپ کو کوئی آواز سنائی دی ہے؟ وہ اپنی ماں سے بولی، امی مجھے پانی پینا ہے۔ اس کی ماں پانی لینے گئی تو اچانک سے ایک خوبصورت لڑکا اس کے لیے پانی لے کر ہاتھ میں گلاس لیے فاطمہ سے مخاطب ہوتا ہے، یہ لو فاطمہ پانی پی لو۔ فاطمہ اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، تم کون ہو اور اچانک میرے کمرے میں کہاں سے آ گئے؟ اس لڑکے کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمک ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں وہی نوجوان ہوں جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور اسی وقت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فاطمہ کہنے لگی، میری تو کل بارات آنے والی ہے۔ اس لڑکے نے کہا، میں بارات واپس کرا دوں۔ فاطمہ اب بالکل تندرست لگ رہی تھی، جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ سب کچھ اس لڑکے کا کیا کرایا تھا۔ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ فاطمہ نے اپنی ماں کو آواز دی۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ امی جان،
मालूम नहीं वो कौन नौजवान है, मुझे तो वो कोई और ही मखलूक लगता है। वो मुझे कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। फातिमा की माँ ये सुनकर बहुत परेशान हुई। सुबह हुई और वक्त गुजरता गया। बारात भी आ गई और काजी साहब भी आ गए। कुछ लोग उस सवारी की तरफ बढ़े जिसमें दूल्हा मौजूद था, लेकिन दूल्हा वहां से गायब था। सब लोग हैरान और परेशान हो गए। जब ये खबर फातिमा को मिली तो वो बहुत घबरा गई और समझ गई कि ये सब उसी जिन लड़के का किया हुआ है और बारातियों के लिए जो खाना पकाया गया था वो भी देख से गायब हो गया। बारात भी वापस चली गई। जब बाराती अपने घर वापस चले गए, दूल्हे के माँ बाप जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा दूल्हा तो अपने घर में सो रहा है। घर वालों ने पूछा, तुम वहां थे और यहाँ कैसे पहुंच गए? तुमने हमारी बड़ी बेइज्जती करवा दी, हमारी नाक कटवा दी। दूल्हे ने कहा, मैंने एक गायबाना आवाज सुनी, अगर तुमने फातिमा से शादी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और अचानक मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। फातिमा के घर वाले बड़े परेशान थे। दोबारा फिर वो लड़का फातिमा के कमरे में हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। फातिमा अब समझ चुकी थी कि ये कौम जिन्नात से है और ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए इससे नरमी से बात करनी चाहिए। फातिमा ने इससे पूछा, तुम कहां से आए हो और तुम्हारा घर कहां है? इसी दौरान फातिमा के अब्बा फातिमा के कमरे में आए। फातिमा उस लड़के से बातें कर रही थी। अब्बा ने फातिमा से कहा, बेटी तुम किससे बातें कर रही हो? फातिमा ने कहा, अब्बा जान मैं इस लड़के से बातें कर रही हूँ। अब्बा ने कहा, मुझे तो यहाँ कोई लड़का नजर नहीं आ रहा, चलो तुम्हारी माँ बुला रही है। वो लड़का फातिमा को अगली मुलाकात का कहकर गायब हो गया। फातिमा ने अपने माँ बाप और चचा से तफसील से बात की। एक लड़का है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे तो लगता है वो एक जिन है और मुझ पर आशिक हो गया है। रात का अंधेरा फैलते ही वो लड़का फिर से फातिमा के कमरे में हाजिर हो जाता है। फातिमा अचानक उठ खड़ी होती है और लड़के से कहने लगी, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे चचा से मिलना होगा। ये सुनकर वो बोला, ठीक है। फिर उसने अपने चचा को आवाज दी। उसके चचा कमरे में आ गए। लड़का कमरे में इंसानी शक्ल में मौजूद था। चचा ने लड़के से कहा, तुम फातिमा से शादी करना चाहते हो? लड़का कहता है, मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं, बल्कि इश्क करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं। फातिमा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। चचा ने कहा, ठीक है, अगर तुम फातिमा से शादी करना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है। तुम एक रात में मेरी भतीजी के लिए एक खूबसूरत किला तामीर करोगे। अगर तुम अजान फजर से पहले पहले किला तामीर ना कर सके तो दोबारा फातिमा से शादी की जिद नहीं करोगे। वो लड़का कहता है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अगर मैं ये शर्त हार गया तो मेरा ये वादा है कि मैं फातिमा से बिल्कुल राब्ता नहीं रखूंगा, बल्कि उसकी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। फातिमा के चचा से ये अल्फाज कहकर वो गायब हो गया। फातिमा ने घबरा कर चचा से कहा कि अगर वो ये शर्त जीत गया फिर आपको इसकी शर्त माननी पड़ेगी। फातिमा के चचा बहुत समझदार और अक्लमंद शख्स थे। उन्होंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रात के तकरीबन 8 बजे हुए थे।
और किले की तामीर का काम शुरू हो चुका था। किले की तामीर जारी थी कि अचानक फातिमा के चचा को ख्याल आया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 4 बज चुके थे, लेकिन किले की तामीर जोरों शोरों से जारी थी। फातिमा के चचा फौरन मस्जिद में गए। उन्हें पता था कि अब मैं थोड़ी देर बाद शर्त हार जाऊंगा। ये सोचकर फातिमा के चचा बहुत परेशान हुए। खैर, चचा ने फौरन वजू किया और अलाउड स्पीकर पर अजान फजर दे दी। अजान का सुनना था। किले में तमाम जिन जिस हाल में जहां जहां काम कर रहे थे, सब ने वहीं पर काम छोड़ा और सब के सब गायब हो गए। उधर जब इमाम साहब ने टाइम देखा तो कहा, किस नामाकूल ने वक्त से पहले ही अजान दे दी। चचा ने सब कुछ इमाम साहब को बता दिया। उन्होंने फौरन वजू किया। इमाम साहब ने फौरन वजू किया और नमाज के वक्त पर अजान दी। जब सुबह हुई तो वो खूबसूरत लड़का इंसानी शक्ल में हाजिर हो गया। फातिमा के कमरे में हाजिर हो गया। फातिमा डर गई। उसने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा आखिरी दीदार करने आया हूँ। मुबारक हो तुम्हें, तुम शर्त जीत गई हो। मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो किले के पास जाकर मेरा नाम पुकार लेना। मेरा नाम सुलेमान है। मैं हाजिर हो जाऊंगा। जब तक तुम्हारी औलाद इस दुनिया में रहेगी, कोई भी जिन तुम लोगों को तंग नहीं करेगा और मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर इस इलाके की तरफ कभी रुख नहीं करूंगा। तुम्हारा शहर और किला तुम्हें मुबारक हो। जिनकी आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। चंद दिनों बाद फातिमा डरती डरती किले की तरफ गई और किला देखकर हैरान हो गई। बहुत ही खूबसूरत किला अपनी जगह पर मौजूद था। फातिमा सोचने लगी, काश ये किला किसी इंसान ने मेरी मोहब्बत में बनाया होता तो कितना अच्छा होता। पूरा गांव और आसपास के इलाके के लोग भी किला देखने आए तो देखा कि किला वाकई में मुकम्मल हो चुका था। बस किले की छत रह गई थी, जो मुकम्मल होने से रह गई थी। किला इतनी महारत से तामीर किया गया था, जो एक दफा देख लेता तो उसे हैरानगी होती कि इतनी खूबसूरत पत्थर कहां से लाए गए थे। ये किला एक जिनजादे ने एक आदमजादी के लिए तामीर किया था। बनाने वालों ने बनाया ही अजीबोगरीब तरीके से था। इसके नक्शो नगार बहुत ही खूबसूरत बनाए गए थे। यह किला आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से 180 किलोमीटर के फासले पर वादी नीलम में वाक़या है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी अम्मी जान के इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।